सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब बीच में वीडियो स्टॉप करते हैं कट जाती है। सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन लिविंग थिंग्स। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। Cell are the smallest living part of an organism. Generally, cells are round, spherical and elongated. Means cell is the basic structural unit of the living things. Living things की जो basic तो structural unit है वो cell है. Living thing start with cell. Cell are the basic structural unit of the living thing. There are two types of cell. One is unicellular and other is multicellular. Unicellular, the organism which are made up of only single cell, तो single cell के बने हुए हैं, और organisms which are made up of many cells, जो बहुत सारी सेल से बने हैं वो multicellular. Unicellulars का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, these are unicellulars. And multicellulars, the example of multicellular is human being, bird, right? These are the examples of unicellulars and multicellulars. Okay, students? So, what is cell? Cell are the basic structure unit in living things. Then, tissue. What is tissue? Tissue is a group of similar cell performing a specific function. Tissue is a group of cell performing similar function. मतलब इस टाइप की सेल्स जो कि एक ही तरह काम करती है उनके ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं. ओके, एंड सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स. व्हाट इज ऑर्गन्स? An organ is made up of tissue which in turn are made up of cells. A group of tissue performing same function is form of cells formed organs. An organ is made up of tissue which in turn are made up of cell. An organ is made up of tissue which in turn are made up of cell. Now, okay, organs are the smaller part of all organisms and these are made up of cells. So, first we understand cell, then tissue, then organs, and different organs made up of system, and many systems make together make a human body or a animal body or a plant body. Okay, so cell smallest unit क्या है? सेल है. ग्रुप के सभी सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू. मैनी टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स. मैनी ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं सिस्टम. और सिस्टम मैनी सिस्टम मिलकर बनाते हैं बॉडी. अ प्लांट बॉडी, अ ह्यूमन बॉडी. नाउ हियर वी विल डिस्कस सेल. द सेल टू टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर्स एंड मल्टीसेलुलर्स. अब हम सेल्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम आपको एक बात और बता देंगे. सेल के बाद में सेल्स भी दो तरह की होती हैं, एक तो यूनिसेलुलर्स और मल्टीसेलुलर्स. उसमें भी सेल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स अगेन. वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर इज यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स.
जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरियल सेल। और जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं यूकेरियोटिक सेल, जैसे हमारी सेल जो है वो यूकेरियोटिक सेल्स है। अभी इसको हम दोबारा से हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब इसे हम फिर से रिपीट करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकेरियोटिक सेल्स। ओके स्टूडेंट्स? हाँ। now you will study some parts of cells। अब हम सेल्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन is the covering layer that encloses the various components of a cell. This membrane separates the inside contents of the cell from the surrounding medium or outside the cell. This membrane also separates the cell from the other. This membrane provides shape to the cell in plant and animal. The plasma membrane is porous and allow the movement of substance or material both inward and outside of the cell. Nature of the membrane regulated this movement of material। Means सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऐसी मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो सेल को बाहर से जिसने कवर कर रखा है। ओके, जिसने सेल को चारों तरफ से कवर कर रखा है और सेल के पार्ट्स को भी। The membrane separate the inside contents of the cell from the surrounding medium or outside of the cell। तो सेल के अंदर के पार्ट को और सेल के बाहर के पार्ट को जिसने कवर कर रखा है उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। मींस सेल के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन्स है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। सो सेल मेम्ब्रेन्स से कोई सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके कोई अंदर नहीं आ सकता और कोई सेल के अंदर से बाहर नहीं जा सकता। इफ ओनली सेल मेम्ब्रेन्स अलाउ यू, ओनली सेल मेम्ब्रेन अलाउ द मटेरियल टू पास, टू एग्जिट और टू एंटर। जैसे हमारी बॉडी है, इस बॉडी में से कुछ बाहर निकलता है, बताओ? इस बॉडी के ऊपर स्किन नहीं है, यहां से कुछ बाहर निकलता है? कुछ बाहर नहीं निकलता, यहां से निकलता है स्वेट, पसीना बाहर निकलता है ना यहां से, है ना? लेकिन जब ये बॉडी अलाउ करती है तभी। अब मैं चाहूँ मेरी बॉडी से पसीना बाहर निकल जाए, नहीं निकलेगा। जब ये अलाउ करेगी तभी बॉडी से बाहर निकलेगा। सच टाइप ऑफ वर्क ऑफ इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म सच टाइप्स ऑफ वर्क।